trophies will be awarded for their accomplishments. Annual Sports Day is not only for those students who are good at sports. Right, proud moment for us. Mama ji. Done. चलिए सर्वकारेषु सर्वदा शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परं ज्योति। आप आगे चाहिए बट मैम थोड़ा एक फोटो कराइए हरी डन। Everyone present here heartily welcome the chief guest and the dignitaries of the annual sports day. The chief guest in 2015 he became the #1 ranked player in the world, the first ever Indian to have reached the top spot. Not only this, in her 12-year-long badminton career, Saina Nehwal has won over 24 worldwide titles, 11 of which are Super Series titles. She is also the only Indian to have won at least one R, who is a Dronacharya Award winner, later by Polya Gopichand in 2014 and currently by the former badminton champion, national coach U. Vimal Kumar. He plays for Hyderabad Hot Shots in Indian Badminton League. Her parents, Mr. Harveer Singh and Mrs. Usha Nehwal, were also top-level players and champions of badminton in Haryana. She is the inspiration for young athletes. Saina's elder sister Anshu is a top model and she was also a volleyball player. We welcome you, ma'am. मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि अपनी तकदीर का लिखा देखूं। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि अपनी तकदीर का लिखा देखूं। बस माँ की मुस्कुराहट देखकर समझ जाती हूँ तकदीर बुलंद है। The hand that rocks the cradle rules the world. माँ की महिमा का जितना भी बखान किया जाए वो कम है। माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता। वह अपने बच्चों के हित के लिए अपार प्रेम और निस्वार्थ भाव से परवरिश करती रहती है। वह अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती रहती है, जो एक सामान्य इंसान को असंभव काम करने में सक्षम बनाती है। Confidence in her daughter and has played an incredible figure in Saina's life. She has played a vital role in nurturing, supporting and shaping Saina's badminton career. We welcome you, ma'am. To our honorable chief guest, Ms. Saina Nehwal, as a token of admiration and respect. I would also like to call Mrs. Bhavna Singh, principal of DPS Itawa, to offer a garland to our chief guest, Ms. Saina Nehwal. I would request to Dr. Vikas Yadav, chairman of Madan Hospital and member of management committee of DPS Itawa, to present a bouquet of flowers to our honorable chief guest. I would also like to call Dr. Preeti Yadav,
Vice Chairperson of DPS Etawah, to offer garland to our chief guest. Vice Chairperson of Madan Hospital and member of Management Committee of DPS Etawah, to offer a bouquet to our chief guest. I would also like to call Dr. Anand Muni, CBSE City Coordinator and Principal of Sant Vivekanand Senior Secondary School, to present a bouquet of flowers to our chief guest. I would request to Dr. Uma Shankar, Director of SMGI, to present a bouquet to our honorable chief guest. I would also like to call Mr. Shashi Shekhar Tripathi, Director of Sri Madan Lal Institute of Nursing and Paramedical Etawah, to present a bouquet of flowers to our honorable chief guest. Next, I would request Dr. Seema Tripathi, Director of Sant Vivekanand Public School, Bhind, Madhya Pradesh, to offer a garland to our reputable chief guest. I would also like to call Mrs. Geeta Redu, Principal of Sant Vivekanand Public School, Bhind, Madhya Pradesh, to offer a garland to our honorable chief guest. I would request Ms. Ashian Inter Etawah to offer garland to our chief guest. I would also request Ms. Ritu Yadav, Principal of Gyan Mandir Inter College Etawah, to offer garland to our chief guest. I would request Ms. Preeti Tripathi, Principal of Biscuits Balram Singh Chowra Etawah, to offer a bouquet to our chief guest. I would request Ms. Pooja Sankhwar, Principal of Biscuit Friends Colony, to offer a garland. I would request Mr. Rehan Aziz, HOD Sports DPS Etawah, to present a bouquet of flowers to our honorable chief guest. I would request Mr. Prabhakar Singh, Mr. Kuldeep Singh, Mr. Bhanu Pratap Singh Rathore, Mr. Farhan Aziz and Ms. Aradhana Tiwari from our school sports department to offer a garland and a bouquet to our chief guest. Now I would request Mr. Parvinder Singh, Registrar of SMGI, to present a bouquet of flowers to our chief guest. I would also like to call Mr. Sunil Dutt Avasthi, Principal of GC Genius Public School, to offer a garland. Mr. Kaushal Kishore, Principal of Kids Valley School, Etawah. I would also like to request Dr. Dharmendra Sharma, Principal of Narayan College of Science and Arts of Etawah, to offer bouquet. Yes, 10 I would also like to request Mr. Sanjeev Kumar from SMGI to present a bouquet of flowers to our eminent personality. I would request Mr. Abhishek Saxena, Principal of Police Modern School, Etawah. I would also request Mr. Balraj Bhudoria, Principal of Rising Sun International School, Etawah, to offer a bouquet. I would request Mr. Anup Mishra, Principal of Theosophical International College, Etawah, to offer a garland to our chief guest. Done. I would also request Mr. Kalpana Singh, Judge and DPS Etawah, to offer a garland. I would also request Mr. Manoj MS, Principal of Divine Light Public School, to offer a bouquet of flowers.
I would request our chairman sir to present a bouquet of flowers to our honorable Miss Usha Rani as a token of admiration and respect. I would also like to call Mrs. Bhavna Singh, Principal of DPS Etawah, to offer a garland to our chief guest, Mother Mrs. Usha Rani. I would also like to call Dr. Preeti Yadav, Vice Chairperson of DPS Etawah, to offer a garland to Mrs. Usha Rani. I would also like to call Dr. Amita Singh Yadav, Vice Chairperson of Madan Hospital and Management Committee of DPS Etawah, to offer a garland. I would request to Dr. Seema Tripathi, Director of Sant Vivekanand Public School, Bhind, Madhya Pradesh, to offer a garland to Miss Usha Rani. I would also request Mr. Rajiv Kumar. I would also request Mr. Raj Kumar, Tahsildar Etawah, to offer a bouquet of flowers. काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ। काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। I would also request Honorable Judge Alok Srivastava to offer a bouquet of flowers. I would also request Dr. Seema Tripathi, Director of Sant Vivekanand Public School, Bhind, to offer a garland. हमें बताना Mrs. Bhavna Singh, Principal of DPS Etawah, to kindly welcome our Chairman Sir Dr. Vivek Yadav. Let us invocate the blessings of the Almighty by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thoughts and enlightenment. Om Asto Ma Sadgamya. It's our honor to invite Mrs. Saina Mrs. Om Shanti 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 Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Shanti 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 Asato Ma Such a दिल्ली पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में आज हम जो वार्षिक खेल उत्सव मना रहे हैं उसमें यहाँ उपस्थित आज की मुख्य अतिथि पद्म विभूषण पद्मश्री साइना नेहवाल जी, सबसे पहले मैं आपका, अपने विद्यालय परिवार, अपने सभी अभिभावकों, सभी बच्चों और सभी टीचर्स
और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सहोदय, स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स, मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण और आप सभी की तरफ से आपका मैं सबसे हृदय से स्वागत करता हूँ। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय की वाइस चेयरपर्सन प्रीति यादव, मेंबर कमेटी डॉक्टर विकास यादव, डॉक्टर अमिता सिंह, विद्यालय की प्रधानाचार्य भावना सिंह जी, सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिले के सम्मानित जजेस साहब, संत विवेकानंद स्कूल भिंड की प्रधानाचार्य जी, उनके डायरेक्टर और हमारे एसएमजे के डायरेक्टर्स और यहाँ उपस्थित सभी स्कूलों के सम्मानित सभी प्रधानाचार्य लोग, सभी हमारे अतिथिगण, मंच पर अतिथिगण, सभी अभिभावकों, प्रिय बच्चों और पत्रकार साथियों, ये सबसे पहले ये हम लोगों के लिए सबसे गर्व की बात है कि हमारे भारत की गौरव साइना नेहवाल जी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार पुनः उनका इटावा में उनका पुनः स्वागत करता हूँ। मुझे याद है मैं उनसे लगभग 1 वर्ष पहले दिल्ली में ही टर्मिनल 3 पे एयर इंडिया के लॉन्च में मिला। वो अपने पिताजी के साथ इंडोनेशिया में टूर्नामेंट खेलने जा रही थी, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे स्कूल में आएँ, हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स डे पे आप प्रोत्साहित करने के लिए आएँ। तो उन्होंने बड़े सहजता से उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि सर जब भी आप बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगी। तो ये उनकी सहजता थी। एक मेरे छोटे से निवेदन पर उस दिन उन्होंने 1 साल पहले, मुझे नहीं पता था उनको याद रहेगा, लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले उनको फ़ोन किया कि मैं आपसे यह बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं हाँ मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी, तो मैं ज़रूर आऊँगी। और आप जानकर आश्चर्य होंगे, कल वो कोटा थी और कोटा से बाई रोड इटावा वो चल के आई हैं, केवल इसलिए कि इटावा में हम सबसे मिल सकें, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें। ये उनकी सहजता ही है कि वो इतनी दूर चल के आई। मैं बड़ा आश्चर्य था, मैं जब मैंने उनसे कहा मैडम आप बहुत दूर है कोटा, बोले नहीं आपने कहा है, आपने आमंत्रित किया है तो मैं ज़रूर आऊँगी। और मुझे स्कूल में जाके बच्चों से मिलकर, जो नए खिलाड़ी हैं, नए एथलीट्स हैं, उनको जाके मिलके अच्छा लगता है। हम सब जानते हैं कि साइना नेहवाल जी बैडमिंटन में ही हमारी सबसे लड़कियों की हीरो रही हैं, और लड़कियों की हीरो क्यों, लड़कियों के भी वो हमारी आइडल हैं। वो जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते, कॉमनवेल्थ में मेडल जीते, एशियाड में मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियन रही, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती इन्होंने। वो भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिन्होंने भारत की बहुत सारी बेटियों को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने उनकी तरह बनने की इच्छा शक्ति रखी और उनको तरह बनने की प्रेरणा ली। ये आपका ही संघर्ष है, आप जहाँ तक पहुँची, या तो हरियाणा की है या हैदराबाद की है, लेकिन वास्तविकता में वो उत्तर प्रदेश की हैं। वो उत्तर प्रदेश में मेरठ में उनके माता पिता रहते थे और मेरठ की रहने वाली हैं वो। और बाद में जब उनके पिताजी हरियाणा में उनकी जॉब लगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तब अविभाज्य उत्तर प्रदेश था, हरियाणा उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। जब हरियाणा बना तब वो हरियाणा में गई, लेकिन अभी भी उनकी परिवार, उनके रिश्तेदार, उनकी जड़ें सब जो हैं वो मेरठ से जुड़ी हुई, मेरठ के गाँव में जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे लिए एक आत्मीयता की बात भी है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश की हैं। तो ये भी हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेगी हम लोगों के लिए कि हमारे प्रदेश की एक बेटी ने भारत का इतना बड़ा नाम किया, रोशन किया। मुझे याद है मेरी दूसरी बेटी हुई मुस्कान, तो कई हमारे परिवारों में हमारे माता पिता थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, तो मेरी माँ जब वो हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई थी, कि आप सब जानते ही हैं। तो जब बेटी हुई हमारी, तो मेरे मेरी माँ जब खुश नहीं थी तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम कुछ बोली नहीं। तो बोली कि तुम साइना मिर्जा को जानती हो? बोले हाँ जानती हूँ। तो बोली कि फिर साइना नेहवाल को जानती हो? बोले नहीं जानती हूँ। बोली जानती हो? बोले हाँ मैं जानती हूँ। बोले उनके माता पिता को जानती हो? बोले नहीं। बोले यही अंतर है।
कि बेटियां जो होती हैं जब आपको बन के दिखाती हैं तो आपको गर्व होता है उनके ऊपर, और आप साइना जैसी बेटियों को जब पाके हमने देखा तो गर्व की महसूस हमें भी होती है कि आप जब बेटियां इतनी बड़ी होती हैं, इतना बढ़ के चल के अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। आज उनकी माता जी भी यहाँ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उनका भी बहुत संघर्ष रहा है, उनके माता पिता दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और वो अपने बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर पे भारत को पहचान दिलाने के लिए वो हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हुई। आज सभी अभिभावक यहाँ पर हैं, सभी अभिभावक, बहुत सारे अभिभावक आप में से चाहते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, कुछ चाहते हैं कि अन्य और प्रोफेसर्स बने, साइंटिस्ट बने। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं, हमारे साथी हैं, हमें से भी कई लोग हैं जो अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए कोटा शिफ्ट होते हैं, कोटा जाते हैं या अन्य स्थानों पे जाके अपनी इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स की तैयारी कराते हैं। तो यदि आपको अपने बच्चों को साइना नेहवाल बनाना है, सचिन तेंदुलकर बनाना है, विराट कोहली बनाना है, तो उतनी ही इच्छा शक्ति आपको अपने बच्चों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए रखनी होगी कि अगर आप जैसे अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक अपने साइना जी को भी और मन से अभी सभी अतिथियों को बताना चाहूँगा। अभी एक हमारी बच्ची है जिसने जूडो में सीबीएसई में इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। उस बच्ची यहाँ पर है, उनकी माँ भी है यहाँ पे, माँ आई है, उनकी मदर क्या नाम है, अनुसुईया यादव है, वो बर्तना के रहने वाली है। मैं उनकी माँ का संघर्ष होती थी या कभी स्कूल में आती थी तो सुबह 5 बजे अपनी बेटी को स्कूल में जूडो की ट्रेनिंग के लिए वो सुबह अपने बच्चे को स्वयं लेके आती थी और वो उन्होंने इतने संघर्ष किया, अपनी बच्ची के लिए मेहनत की। आज उनकी बेटी ने इटावा की इस स्कूल में, इटावा की धरती से सीबीएसई में नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये एक उस बच्ची की माँ, उनका संघर्ष है और वो निश्चित तौर पे वो चाहेंगी कि उनकी बच्ची आगे बढ़े, आगे और भी इस तरह के संघर्ष करती है। एक और हमारे अभिभावक रहे हैं जो बच्चे हमारे यहाँ पहले भी थी, उसने भी जूडो में ऐसी नेशनल मेडल गोल्ड मेडल जीता और वो बच्ची के कैरियर के लिए उनके माता पिता हरियाणा के रेवाड़ी में शिफ्ट हो गए, केवल इसलिए क्योंकि वो अपनी बच्ची को चाहते थे कि वो जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व करे, ओलंपिक खेले और इस तरह की करे। तो ये एक प्रेरणा है और ये प्रेरणा आपके सामने उन माता पिताओं की है जो इटावा के हैं, और एक माँ जो बैठी है जो उत्तर प्रदेश से रही, फिर बाद में हरियाणा चली गई, हरियाणा से हैदराबाद चली गई और उसके बाद आप देखिए उनकी बेटी ने वो उनका नाम किया कि आज उनकी माँ, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूँगा कि आज उनकी पहचान वो इसलिए है कि वो साइना नेहवाल की वो माँ है। तो एक माँ पिता के लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है जब उसकी माँ पिता की पहचान उसके बच्चे से हो। जब किसी माता पिता की पहचान, जब आप कहीं जाएं और आपको ये कोई कहे कि नहीं आप इस आपके बच्चे का नाम लेके बोले कि नहीं आप उस बच्चे के माता पिता हैं, आपकी जब पहचान ये होती है तो उस माता पिता से पूछिए उनकी गर्व की अनुभूति क्या हो सकती है। तो ऐसे माता पिता, मैं उनको नमन करता हूँ, उनके संघर्ष को नमन करता हूँ और आप सबको, हमारे अभिभावकों को भी मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर्स बनाइए, लेकिन खिलाड़ी भी बनाइए। एक समय था जब हम खेलने जाते थे तो हमारे माता पिता बहुत डांटते थे, खेलने नहीं देते थे, पिटाई भी होती थी। अब हम कहते हैं अपने बच्चों को नहीं, बाहर जाके खेलो, और खिलाड़ी बनाना भी चाहते हैं और हम चाहते भी हैं कि, और आपने इस तरह के लोगों को आपने देखा है, आपने पिछली बार देखा है कि पिछली बार मैरी कॉम भी आई थी, उनसे पहले भी धनराज पिल्ले और बाकी सब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, दीपक ठाकुर, वो यहाँ पर आए। हमारा हमेशा उद्देश्य यही होता है कि आप सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भारत की शान, भारत के गौरव जब हमारे खेल उत्सव पर आते हैं, स्पोर्ट्स डे पर आते हैं, तो निश्चित तौर पे वो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको देखते हैं जिनको उन्होंने टीवी पे देखा है, जिनकी बायोमेट्रिक उनकी बायोपिक्स देखी है, लेकिन जब उनको सजीव देखते हैं तो उनको निश्चित तौर पर उनके बहुत प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहित होते हैं। और मैं ये भी मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि आप अभिभावक भी सब इनसे प्रेरणा लें और इनके माता पिता की तरह आप भी प्रेरणा लें, अपने बच्चों को सानिया मिर्जा, विराट कोहली, सचिन, जो भी आप बनाना चाहें आप बनाएं और खेलों में भी आगे बढ़ाएं। इस समय भारत का स्पोर्ट्स में गोल्डन एरा चल रहा है, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में लगातार हम नाम देख रहे हैं, नाम दिखते हैं, नाम चुनते हैं। नीरज चोपड़ा को आपने सुना है, हर बच्चा जानता है नीरज चोपड़ा को।
हर बच्चा चाहता है कि वो, कई बार मुझे याद है मेरे एक दोस्त है इटावा में, हमारे साथी हैं, मेरे साथी काम करते हैं। एक दिन उनका बच्चा, मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, वो आपने देखा होगा घर में वाइपर, तो वाइपर लेके वो सड़क पे दौड़ रहा था। तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं भाला फेंक रहा हूं, मुझे नीरज चोपड़ा बनना है। तो ये एक, जब वो टीवी पे देखते हैं साइना को, नीरज चोपड़ा को, इस तरह के लोग देखते हैं तो उनको बनने की प्रेरणा मिलती है। तो आप सोचिए, जब साइना या मन से आपको बताएंगी, अपने संघर्ष की बात बताएंगी, आपको प्रेरित करेंगी, तो कितना आप खुश होंगे, हमारे बच्चे कितना प्रेरित होंगे, उनकी तरह बनने की चाहत रखेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी को, साइना जी का फिर से स्वागत करूंगा और अपने स्कूल के बारे में भी जरूर बताना चाहूँगा कि इस साल हमारे स्कूल में, आप जैसे जानते हैं कि स्पोर्ट्स, खेलों में तो हमारे बच्चे, पढ़ाई में तो अच्छे हैं ही, कल्चरल प्रोग्राम में भी अच्छे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी सबसे अच्छे हैं। बाकी स्कूल जो हमारे जो साथी स्कूल से सभी वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे स्कूल ने इस साल जूडो में जो जोन टूर्नामेंट था, जोन टूर्नामेंट में 14 मेडल जीते। 14 मेडल में जिसमें 4 गोल्ड मेडल थे, और उनमें भी एक बच्ची जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस बच्ची ने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता। ये हमारे बच्चों के अचीवमेंट है। ईस्ट जोन में हमारे स्केटिंग टूर्नामेंट में, स्केटिंग में हमारे बच्चों ने 9 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल जीते। ताइक्वांडो में जोन टूर्नामेंट में हमने 3 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल जीता। और जिस बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ, पायल यादव, जो जिसने गोल्ड मेडल जीता, जब वो गोल्ड मेडल जिसने नेशनल में जीता, जिस नेशनल टूर्नामेंट में, उस गोल्ड के साथ साथ उसको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मैंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला, क्योंकि उसने 5 फाइट लगातार जीतने के बाद उसने वो गोल्ड मेडल जीता। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर उसके लिए तालियां बजाएं, उसको प्रोत्साहित करें, और अपने लिए भी आप तालियां बजाएं कि मैं चाहूँगा आप में से भी आप में से किसी बच्चे को आप पायल और बाकी बच्चों को बनाएं, और कल चल के वो साइना और विराट हो या आप सचिन बने। मैं अंत में अपने सभी अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी हमें कोई कार्यक्रम होता है, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई और प्रोग्राम हो, हमेशा उनका सहयोग रहता है। हमेशा वो हमें प्रोत्साहित भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमें जितना भी सहयोग मिल सकता है वो देते हैं। मेरे सभी साथी शिक्षकगण जो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, वो भी, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन के लिए हमारा साथ दिया, हमेशा लगे रहते हैं शिक्षण अपने एकेडमिक्स प्रोग्राम के अलावा भी। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और सभी पत्रकार साथियों का भी, क्योंकि जब भी हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक्स में हो या किसी और तरीके की हो, वो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने न्यूज़पेपर्स में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जगह देते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर से मैं अपने मुख्य अतिथि पद्मश्री, पद्म विभूषण साइना नेहवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनकी माता जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Guiding us with the wisdom and sharing your life. भांगरा नस नस विच रचिया, भांगरा द जलवा हर ते मचिया, भांगरा रूह विच ऐसा खुलिया, भांगरा सुन के रोना पुलिया। भांगरा आलम खुश मिजाजी, भांगरा जिदा इश्क दी बाजी, भांगरे नो सारी दुनिया मन गई, भांगरी सबदी आदत बन गई। With this, I would like to call our next performers.
भागने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना गिरना उठना उठ के चलना चढ़ जा अंबर सीना सीना याद रहे ये शर्त सफर की पीछे मुड़ के देख कभी ना जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों मैं परिंदा क्यों बनूं मुझे आसमां बनना है मैं एक पंछी क्यों रहूं मुझे रास्ता बनना है मैं परिंदा क्यों बनूं
Yadav and head girl Shruti Chauhan to keep the torch aflame. The flame of peace and harmony is now lit our school premises, and may this light glow to remove darkness in the lives of all. I invite the first team, Emerald, to commence with a march. Amber is led by Flaneur, Ansh Mishra and Praka Molo Angel. Please give them a big round of applause. The green color of Amber symbolizes development, growth, new beginning and generosity. The chief variety of one of the India's most famous temples, the Meenakshi Amman, in Madurai is the goddess Meenakshi, whose title is traditionally to be thought of the of Amber. Symbolizes sacrifice, courage, passion and joy. A traditional Hindu astrological belief holds rubies, symbol of the sun and also the handy deity Surya. The leader of the nine heavenly bodies Navgraha. The belief is that worshipping and wearing rubies causes the sun to be favorable to the wearer. Coming up, the Sapphire House, led by flag bearer Harshada and Plaka holder Kumari Ardu. Please give them a big round of applause. The blue color of sapphire symbolizes sincerity, imagination, faith, and confidence. A traditional Hindu belief holds that the sapphire causes the planet Saturn, sunny, to be favorable to the wearer. Now, at last we have Sapphire House, led by the flag bearer Asik Kaur and club card holder Srishti Yadav. Please give them a huge round of applause. The color of sapphire symbolizes creativity, enthusiasm, hope and happiness. The ancient Romans believed that sapphire provided protection from danger while traveling. Through the Middle Ages, it was believed that taking the sapphire protected the home from any foe. And security. Nurturing and grooming the quality and potential of the individual child. Important. We sing together in joy and pride. Yes, is the best in the whole world wide. Thousand voices in joyous song. We're proud of our school to which we belong.
praise our song. We involved in the lively songs. We love all the things that we've been taught. Ever loyal to our school and our service to give. We make the world a better place to live. We sing together in joy and pride. EPS is the best in the whole world wide. A thousand voices in joyous song. We're proud of our school to which we belong. We sing together in joy and pride. EPS is the best in the whole world wide. A thousand voices in joyous song. We're proud of our school. We're proud of our school. We're proud of our school to which we belong. We would like to extend our warmest congratulations to the winners and participants alike. Now, it's time to honor our winners. We kindly request our chief guest to honor the winners. Champion Shivansh Anand, who has secured gold medal in the state shooting championship 10-meter air pistol. Give a big round of applause for champion Shivansh Anand. Payal Yadav, winner of CBSE East Zone National Judo Championship. I would also like to request Mrs. Anusuya Yadav, mother of Payal, to come up on the stage. The coach Prabhakar Singh during regular practices noticed innate potential in the capabilities and worked very hard in driving the best in the little less. We would also congratulate and thank you her mother, Mrs. Ansuya, for having faith in this school and bringing her for the practices when the school was closed during summers by driving 50 kilometers on her scooty. She is indeed an inspiration for all the parents. Now Group 1 CBSE East Zone Judo Championship, Amit Kumar Singh, Sakshi Yadav, Payal, Divya Shukla, Siddharth Singh, Aral, Pratyush Chaturvedi, Palak Tiwari, Kumari Roli, Avyanshika Singh, Harsh Yadav, Aditya Raj Singh, Harsh Yadav, Devansh, along with coach Mr. Prabhakar Singh. Taekwondo, East Zone, CBSE East Zone Taekwondo, Chess, State Level Champions, SDFI, Ayush Kumar, Ayush Singh, Pavani, Anshika Goyal, Yuvraj Verma, Shreyansh Verma, Shreys Gupta, Siddhi Tripathi, along with coach Ms. Aradhana Tiwari. Basketball under 17. Inviting me today. और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया. मैंने बहुत एंजॉय किया उसको. And I'm so proud to see as a sports person आप सब लोग स्पोर्ट्स में कितनी इच्छा रखते हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं. मैं मेहनत पे बहुत विश्वास रखती हूँ और मैं आज देख रही हूँ कि आप सब लोग इतना मेहनत से सब काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया मेरे सामने और
आई एम श्योर सबका सपना तो ज़रूर रहेगा कि मैं बेस्ट रहूं जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हमेशा हिम्मत रखिए। कभी कभी मैं समझती हूँ ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख आता है, सुख भी आता है, लेकिन हमेशा फाइट करना मत भूलिए। मैंने हमेशा फाइट करी बचपन से, हमेशा जीतने की चाह रखी। कंपटीशन बहुत अच्छा लगता था मुझे, स्पेशली लड़कों से तो बहुत ज़्यादा। बचपन से मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं जितना भी हो सके हर एक चीज़ में लड़कों को ज़रूर हराऊं, ताकि वो मैचेस हों या मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स हों। थोड़ा अनफेयर रहेगा बॉयज़ के लिए यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है वो लोग स्ट्रांग है और वो अपना देख लेते हैं। बट लड़कियों के लिए स्पेशली मैं ये चाहती हूँ कि वो फाइट करे, अच्छा करे, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ, जब अब मैं अपने कंट्री के लिए बेस्ट कर सकती हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती हूँ, आप सब लोग जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसमें वर्ल्ड नंबर 1 ज़रूर बन सकते हैं। पॉसिबल है। जस्ट थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जोश चाहिए उस चीज़ के लिए, एंड टाइम चाहिए। जिस भी चीज़ के लिए आप फोकस करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बिताना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो 6 घंटे हो, 7 घंटे हो। आप किसी भी चीज़ को प्रोफेशनली चाहते हैं तो उतना टाइम उस पर लगाना ज़रूरी है। और जितना टाइम फ़ोन पे हो वो कम करिए, टीवी पे हो कम करिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर का मज़ा है, वो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है। थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद तो बाकी आप, जैसे मैं साइना हूँ, मुझे साइना बनना है या मुझे बेस्ट बनना है मेरी जिस भी फील्ड में हूँ मैं, उस पर फोकस कीजिए। आप जो भी हो आप बनिए, ना कि किसी और को देख के सोचिए कि मुझे उस जैसा बनना है। वो रखिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए हमको लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि मुझे उस जैसा बनना है, लेकिन फाइनली आप अपनी पहचान बनाइए, वो इम्पोर्टेंट है। और सब लोग आपको याद रखें, आपकी मेहनत को याद रखें, वो इम्पोर्टेंट है। बचपन से जैसे हम सब लोग सोचते हैं, जब मैं 8-9 साल की थी मुझे लगता था मुझे भी डॉक्टर बनना है, मेरे पापा साइंटिस्ट हैं। वो सपना जो है आपको बाद में ही पता चलता है एक्चुअली आपको क्या करना है। आप बहुत छोटे हैं, उस टाइम पे आपको पता नहीं क्या करना है। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों ने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकती हूँ। स्पोर्ट्स तो स्टार्ट मैंने किया था टाइम पास के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स को उतना जिस टाइम पे मैंने 99-2000 में स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मुझे लगता नहीं था कि बैडमिंटन को हम सीरियस ले सकते हैं या सोच भी सकते हैं कि कुछ बेस्ट बनना है उसमें, क्योंकि मेरे से पहले लड़कियों में तो कोई था नहीं जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड भी क्रॉस कर पाता। लेकिन मैंने सोचा कि चलो स्कूल से पहले थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, स्कूल के बाद हो जाएगा। मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे लगा, जो मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे कोचेस हैं, उन्होंने मुझे बोला कि साइना तो इस पे वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, मुझे तुझसे ओलंपिक मेडल लेके आना है। ये मैंने आई थिंक 2 वीक्स में ही सुन लिया था जब मैंने समर कैंप शुरू किया, और मैं एक्चुअली हंसती थी मेरे पेरेंट्स पे। मुझे लगता था कि वो बोल रहे डॉक्टर बनो और आपने सपना देख लिया कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट भी बन जाऊंगी, जो ऑब्वियसली इजी नहीं है। हर एक प्लेयर का सपना होता है। अब मैंने रियलाइज़ किया कि हर एक प्रोफेशनल प्लेयर का सपना होता है कि ओलंपिक मेडल जीते, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते। बट उस टाइम पे जब मैं बहुत छोटी थी, समझ नहीं सकती थी क्या है चीज़ें, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे कोचेज़ ने सपना देख लिया था कि ये कुछ बन सकती है, इसको सिर्फ मेहनत करना है और डेडिकेटेड रहना है और डिसिप्लिन रहना है। आप लोगों की तरह मुझे भी लगता था किस चीज़ में डाल दिया है, क्या है, पूरे दिन यही करते रहो। मुझे भी बाहर जाना था, मूवीज़ देखना था, डॉल्स के साथ खेलना था, वीडियो गेम्स खेलना था। लेकिन थोड़ा सा टफ लगता है, होता है, दुख होता है। लेकिन जब मैं आज अपने आप को देखती हूँ, इतने सारे मेडल्स मैंने जीते, पोडियम पे खड़ा होने का मौका मिला, कंट्री को सर्व करने का मौका मिला। कितने लोगों को मिलता है साइना इंडिया शर्ट पहन के खेलने का मौका? बहुत कम लोगों को मिलता है। और आज मैं खड़ी हूँ, अपने कंट्री का नाम इतना रोशन किया मैंने। मुझे लगता है अच्छा है मैंने नहीं किया वो सब, वरना काफ़ी बच्चे आज सोचते हैं शायद मैं भी कुछ ऐसा कर लेता कि अपना नाम देश में रोशन कर पाता। मैं पेरेंट्स को यही बोल सकती हूँ, इनिशियली जब छोटे बच्चे होते हैं, आप ही लोग हैं जो उनको रास्ता दिखा सकते हैं। आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट, थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत मार पिटाई ही उनको ठीक से रास्ते पे लेके आ सकती है।
ये मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उनको आप इतना डरा दीजिए या प्रेशर में डाल दीजिए कि वो ही करे जो वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब वो 13-14 इयर्स के हो जाते हैं उनको खुद रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने भी ये समझना शुरू कर दिया था कि 12 साल में जब मैंने सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने शुरू कर दिए थे कि हाँ मेरा एम ओलंपिक्स है, मुझे ओलंपिक्स में अच्छा करना है, मुझे और भी स्ट्रिक्ट हो जाना है मेरा जो रूटीन है उससे। और उसी की वजह से मैं 18 साल में अपना फर्स्ट ओलंपिक गेम्स खेल सकी। मैं मेडल के बहुत क्लोज थी। मुझे लग रहा था कि उसमें मेडल आ ही जाएगा, जो सपना है वो पूरा होने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली 18 साल का बच्चा थोड़ा छोटा होता है सोचने के लिए कि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता है मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। मैं 11-3 अप थी, मैं थोड़ा सा इजी ले लिया था उस पॉइंट पे और मैं मैच अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर फाइनल्स 21-13 या 14 कुछ हार गई थर्ड सेट। उसके बाद मुझे लगा पूरी रात मैं बैठी रही रूम में, मुझे लगा एक मुझसे क्या हो गया, इतना अच्छा मैच जो एक सब प्लेयर का सपना होता है ओलंपिक मेडल वो आते आते रह गया मेरे हाथ से। जस्ट एक मैच की कमी थी और अब मैं क्या करूं, अब मैं और 4 साल मुझे वेट करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। कितना मतलब बॉडी को हम फिजिकली टॉर्चर करते हैं, 10-12 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर से वो पूरा सब करना पड़ता है। मैं बहुत रोई 2-3 घंटे, बट मैंने रियलाइज़ किया कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में पक्का मुझे करना ही है। उससे पहले काफ़ी हद तक मुझे जो सुपर सीरीज टूर्नामेंट्स हैं या वर्ल्ड नंबर 1 जो जितने भी पूरे ड्रीम्स हैं वो पूरे अचीव करने हैं। मैंने छोड़ा नहीं, थोड़ा रो के, थोड़ा रात भर नहीं सो के भी मैंने सुबह उठ के ट्रेनिंग करी। मुझे लगा और 4 साल है तो 4 साल है तो देखेंगे, नो प्रॉब्लम। और उसके ही नेक्स्ट ईयर वो हार का दुख ज़रूर उसने मुझे बहुत पुश किया कि मैं और बेटर कर सकूं, लेकिन साथ साथ दुख भी होता है कि उस टाइम पे भी मुझे वो आ जाता तो क्या कितना अच्छा हो जाता मेरे लिए। लेकिन उस हार ने मुझे अगले साल फर्स्ट सुपर सीरीज टाइटल जिताया। मैंने बैक टू बैक इतने चाइनीज़ प्लेयर्स को हराया और 2010 में बैक टू बैक 3 सुपर सीरीज जीते, वर्ल्ड नंबर 2 तक आ गई मैं। और काफ़ी जगह पे साइना वर्सेस चाइना होने लगा क्योंकि चाइना हमारे मेन कंपटीटर्स है बैडमिंटन में। ऑफ कोर्स अभी तो कोरिया, जापान काफ़ी और आ गए, तो धोनी जी से कंपैरिजन होने लगा, बैडमिंटन बहुत ऊपर आने लगा और इतना नाम होने लगा बैडमिंटन का जो पहले कभी मैंने सुना नहीं था। और मेरे टाइम पे कोई ऐसा था भी नहीं जिसको मैं देख सकूँ और बोलूँ मुझे जैसा बनना है। तो जब मैं एक अपने आप पे ऐसा विश्वास रख के ऐसा कर सकती हूँ तो हमारे सब जो बच्चे हैं वो सब ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों को कोई रोल मॉडल की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर एक रोल मॉडल है, उसको जगाइए, मेहनत कीजिए, पेरेंट्स की बात सुनिए, अपने टीचर्स की बात सुनिए और थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस चाहिए हर एक चीज़ में। वो तो आई एम श्योर आपको पता ही है। आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं और सब पता है जो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन आई जस्ट होप आप सब लोग आने वाले सालों में और अच्छा करें। जो भी चीज़ आप चुने, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, मैं तो ये चाहूँगी और स्पोर्ट्स पर्सन आए, क्योंकि जो आपको फेम मिलता है स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लगता और कहीं मिलता है। आई नो मैं पार्शियल हो रही हूँ, बट मुझे स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए। मुझे चाहिए कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन बने। हम बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन प्रोड्यूस कर रहे हैं और अब यही जो एरा है और स्पोर्ट्स पर्सन्स को लेके आएगा। एंड आई एम श्योर हम भी चाइना को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और फाइट दे सकते हैं। हम भी और मेडल्स लेके आ सकते हैं, ओलंपिक्स में हो या कॉमनवेल्थ गेम्स में हो, एशियन गेम्स में हो। तो मैं यही बोलूँगी आप सब लोग को, ड्रीम करते रहिए, बिलीव करते रहिए, कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। थोड़े सेटबैक सबको होते हैं, हमको भी हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन कभी भी हार मत मानो। देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, स्कूल का नाम रोशन करिए एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Your words painted a canvas of wisdom and your voice echoed sincerity. Thank you, ma'am, for sharing your insights and She was unstoppable. Not because she did not have failures or doubts, but because she continued and despite them.
Saina Nehwal, the Indian badminton player, has often credited her mother, Usha Rani Nehwal, for being a driving force in her career. Determination and spirit. बेटा आ जाओ बेटा, मैम एक फोटो करा दीजिए। मैम आ जाइए, मैम आप फोटो कराइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया हो गया हो गया। मैम आ जाइए। A winner is not someone who is Okay, thank you. We swear that we will take part in the annual sports and games competition, respecting the regulation which govern them and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship.
change the world, the power to inspire, the power to unite people in a way little can else. It speaks to people in a language they understand. A sport can create hope when one sees. Personality with the hostels is on the ground. We can see the happy faces of the parents and excitement. It's a great pleasure for all of us. Give a big round of applause for her, everyone. Such a proud moment from all of us who are here. We can see the energy in the student pavilion. The excited faces of our students. The team and our horses is on the ground. It's a great pleasure for all of us. The children who see their role model in between them. We can see students are waving their hands. Our chief is motivating our kids. It's a great pleasure for all of us. It's a wonderful moment. Give a big round of applause to her, everyone. I request to all the parents, those who are sitting here, give a big round of applause. See the horses among the students. We can see the excitement in the children pavilion. खड़े हो पीछे बाइट खड़े होके पीछे का ग्रुप लोग पूरा खड़े होके World's #1 badminton player is in the school premises. It's a great pleasure. हटो 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 हम भागेंगे फिर तुम गिर Excitement in the children and the parents too. Such a great pleasure. World's #1 badminton player and a rodeo, Padma Shri,
his to show their pleasure. उस्ताद कहाँ उस्ताद बोला उस्ताद आओ मैम हटो हरी Ma'am, autograph, please, ma'am. Ma'am, autograph, please, ma'am. सारे दे दो रास्ते में करवा के मंगा कल मिलेगा कल Four into 100 meter relay race. After lead the race, Sapphire House. Then Sapphire House got first position. Then Topaz and Ruby House. It's relay race class. Student be ready. Then relay race class 7 and 8. Then Emerald House. Then Sapphire House again. Then pass the baton to partner. Then Sapphire House girls category class 7 and 8. Lead the race Sapphire House, Ruby House and third Emerald House. Meter race boys category class 9 to 12. Then 100-meter race class 9 to 12 girls category. Abhyanshika Singh, Chipra Yadav, Divya Shukla, Vaishnavi, Unnati Raj, Divyanshi, Srishti Yadav. Then Chipra Yadav lead the race, Ruby House, then Drishti. Ruby House has secured second position. Aksha Kareem from 8th D, Nandini Yadav from 8th A, Shelvi Yadav from 8th D and Avni from 8th D. Give a big round of applause. Emerald House has secured third position. Sakshi Yadav from 8th D, Divisha from 7th B, Kumari Roli from 8th D, Palak Singh from 7th A. And the winners of event 100-meter race. Event 100-meter race in the girls categories from class 9 to 12 and the winners are Shipra Yadav from 10th B, Ruby House has secured first position. Divyanshi from 9th B, Ruby House has secured second position. Abhyanshika Singh from 9th B has secured third position.
Divya Shukla from 10th B, Sapphire House has secured 3rd position. Give a big round of applause to all the winners. Next event, Dizzy Race, Boys category class 7 and 8. This is Dizzy Race class 7 and 8, boys category. Next event, Anamika. Short board. Prabal Mittal and Harshvardhan Yadav. Ayush Singh, Emerald House. Prathul Kumar, Nitin, Sapphire House. Anand Raj, Varun Dubey, Ruby House. Naveen Yadav, Robin Yadav, Topaz House. Rishit Yadav, Pratyush, Sapphire House. Gagan Singh, Arhan Alam, Topaz House. Pratyush Chakravarti and Kartik Yadav, Sapphire House. ये कहाँ आ गई भैया? मैं हलवा तो था।
इसके वजह से आ रहे हैं। And a good request to all the parents, those who are Three categories. Girls category class 7 and 8. Anya Yadav, Kashmi Yadav, Emerald House, Shifra Yadav, Shweta Yadav, Sapphire House, Aradhya Yadav, and Madhvi Singh, Ruby House, Aditi Jain, Arushi Yadav, Sapphire House, Aradhya and Amni Verma, Emerald House. Three categories, class 7 and 8, first category. House has secured second position. Shreyan Sharma from 8th C, Topaz House has secured third position. Digi race class 9 to 12 in the boys category. Dizzy race class 9 to 12 in the girls category, and the winners are Monica Yadav from 9th B, Emerald House has secured first position. Shurbi Baghel from 9th B, Sapphire House has Praval Pratap from 11th A, Topaz House. Short put from class 9 to 12, and the winners in the girls category, Abhyanshika Singh from 9th B, event wheelbarrow race, class 7th and 8th in the boys categories, and the winners are Ruby House has secured first position. Aryan Raj from 8th A and Varun Dubey from 8th D has secured third position. Arham Alam from 8th C, Topaz House has also secured third position. Give a big round of applause to the winners. Position, Shipra Yadav from 8th A, Shweta Yadav from 8th B has secured second position. Third
Third position has also secured by Emerald House, Aradhya from 8A and Avni from 8A. Give a big round of applause to the winners. Next event 50-meter pair race class 9 to 12 boys category. Krish Chauhan, Krish Gupta, Emerald House, Divyansh Dhangar and Divyansh Dubey, Ruby House, Dhruv Sagar and Harsh Yadav, Sapphire House, Sambhav Singh, Abhiral, Topaz House, Abhay Pratap and Ratan. Mr. Dharmendra Kumar and Mr. Prakash Singh. Okay. Next event relay race. Sapphire House, Shashank Yadav, Siddharth. Then Topaz House, lead the race. Give a big round of applause to Sapphire House. Sapphire House and third Ruby House. Emerald House first position, Sapphire second and Ruby House third position. Has secured second position. Yashi Jadon from 7th B has secured third position and Ridima from 8th D, Ruby House has also secured third position. Sambhav Singh from 9th B, Topaz House has also secured first position. Divyansh Dhangar from 9th D, Ruby House has secured second position. Divyansh Dubey from 9th A, Ruby House has secured second position. Person from 9th A. 50-meter pair race categories from 9th to 12th and the winners are Adrika Agrawal from 10th B, Emerald House has secured first position. Arya from 9th B, Emerald House has also secured first position. Has secured second position. Relay race class 9 to 12. Relay race class 9 to 12 in the girls categories and the winners are Emerald House has secured first position, Pranjit Goyal from 10th B, Kanishka from 9th B and Angel Goyal from E has secured second position, Aveshish Singh from 9th B, Sapphire House has secured second position and Shashwati Punya. Wheelbarrow class 7th and 8th boys and the winners are Aryan Raj from 8th A, Ruby House has secured first position. Varun Dubey from 8th D, Ruby House has secured first position. Nitin Yadav from 8th C has secured second position. Emerald House. Ayush Singh from 7th C, Emerald House has secured second position. Gagan Singh from 8th A, Topaz House. Geeta Yadav, Mrs. Baby Yadav, Mrs. Shushma Yadav, Mrs. Nishu Yadav, Preeti Pal ma'am, Mrs. Kiran ma'am.
relay race for female teacher. Ruchi ma'am, lead the race.